What's up everyone, Praful here. Welcome back to another episode of the 915 Daily. Today is Thursday, 23rd of April and today was Sensex weekly expiry. 2 दिन पहले निफ्टी ने 24,500 के ऊपर एक डिसाइसिव क्लोज दिया था, बट हमने डिस्कस किए थे कि इसके ऊपर एक और फॉलो थ्रू कैंडल आ जाना चाहिए, तब भी हम लोग बुलिश बायस ले सकते हैं. बट आफ्टर दैट द मार्केट्स डिडंट गिव अ फॉलो थ्रू. द वेरी नेक्स्ट डे द मार्केट्स ओपनड विद अ गैप डाउन एंड yesterday the markets actually closed near their day's low. So आज गैप डाउन ओपन का जो प्रोबेबिलिटी था वो उससे थोड़ा ज्यादा था एंड टुडे द मार्केट्स ओपन विद अ डिसेंट अमाउंट ऑफ गैप डाउन. ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का एक गैप डाउन के साथ निफ्टी ओपन हुआ. थ्रू आउट द डे द मार्केट्स डिडंट गो एनीवेयर. इट वाज अ साइडवेज बट वोलेटाइल काइंड ऑफ अ डे. निफ्टी एक्चुअली स्टेड इन अ स्मॉल 200 पॉइंट रेंज एंड इवन सेंसेक्स इट स्टेड इन अ 500 पॉइंट रेंज, बट बिकॉज टुडे वाज एन एक्सपायरी एंड द एक्सपायरी प्रीमियम्स वर super cheap, even this 500 point of volatility was too much for the expiry traders to handle. So today's expiry was quite volatile. It was choppy and the markets opened at sub 78,000 levels and within the first 2 minutes the market slid down another 200 points. 77,700 पे एक लो बनाया and वहाँ से एक 500 point का एक sharp spike देखने को मिला. From there again the markets actually headed towards the day's low. In fact at one time the day's low was breached and from there again there was a bounce. So the markets kind of trapped both the bulls and the bears. So it was a volatile expiry with a lot of curveballs and हमने डिस्कस किए थे कि ऐसे एक एक्सपायरी हमको एक्सपेक्ट करना चाहिए because over the last 3 or 4 expiries the option writers were kind of enjoying a linear crush without a lot of volatility and trapping by the markets. So tomorrow is again a Friday and in spite of the markets seeing 2 consecutive red closes, there is no significant expansion in the volatility. VIX is still trading around 18 levels and there has no significant gain in the long term option contracts. So let's get to the terminal and let's see कल के लिए क्या हम ट्रेड कर सकते हैं. Alright, so this is Nifty's weekly chart. ठीक है, तो if you notice the markets have rallied almost more than 2,500 points in a span of less than 3 weeks and ये जो यहाँ पे red candle आ रहा है, this is not a beginning of a sell-off per se but rather some sort of a consolidation. Markets generally इतना move होने के बाद markets में एक consolidation आना ज़रूरी है and I've been talking about this. अगर markets 24,000 के ऊपर रहेगा, all this 200 point and 300 point of sell-offs the markets won't mind. यहाँ पे आपको wall प्राइसिंग में भी एक सडन रिप्राइसिंग देखने को नज़र नहीं आएगा. ठीक है, अगर डेली चार्ट पे बात करेंगे तो वी डिस्कस दिस. यस, 24,600 24,500 के आसपास एक रेजिस्टेंस है एंड 24,500 के ऊपर एक क्लोज ज़रूर दिया था, बट मैंने क्लियरली बताया था कि अगर हमारा जो बायस है वो बुलिश की तरफ चेंज होना चाहिए तो देन वी नीड अनदर फॉलो थ्रू कैंडल हियर. बट उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पीपल who are like slightly impulsive bulls यहाँ पे थोड़ा बहुत ट्रैप हो गए and markets are again trading somewhere around 24,150 levels. So as long as markets are above this level, यहाँ पे जो midline है 23,900 23,800 के ऊपर जैसे markets रहेगा and 23,800 के ऊपर daily close मिलता रहेगा, तब तक there will not be any significant repricing in the walls. And अगर हमारे पास एक negative news आ जाता है and which makes markets again close let's say negative tomorrow and again open with a gap down on Monday, then again expect the VIX to start trading about 20 levels and again expect the market volatility to pick up a little. And कल का न्यूज़ के हिसाब से 2 ships were actually seized by the Iran forces and one of those ships was actually inbound India. तो इंडिया के तौर पे इंडिया के तरफ आते हुए एक शिप को वहाँ पे सीज किया गया है. I'm not sure like what's the implication of all this because I'm not a geopolitical expert. All I can do is follow and track the prices and react to them. ठीक है, तो to talk about today's expiry, तो we discuss this in spite of a gap down, markets में straddle ज़्यादा होल्ड नहीं किया एंड इन स्पाइट ऑफ अ डिसेंट अमाउंट ऑफ गैप डाउन, ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स का एक गैप डाउन देखने को मिला था मार्केट्स में एंड इन स्पाइट ऑफ दैट द स्ट्रैडल ओपनड ऑलमोस्ट विथ 200 पॉइंट्स ऑफ गैप डाउन. 200 पॉइंट्स का एक क्रश के साथ स्ट्रैडल ओपन हुआ बिकॉज at this point the majority of the risk is priced by the markets only for the overnight uncertainty and intraday में ज़्यादातर risk pricing नहीं है and 400 rupees से yes there was a bit of the straddle premiums holding for probably first 1.5 hours, but after that once the straddle started trading below 350 levels it was a decent downward kind of a day and यहाँ पे एक और blip आपको देखने को मिला होगा 1 o'clock के आसपास when the markets actually broke the day's low, but जैसे markets वापस रेंज के अंदर आ गया again the straddle continued to decay further. But look at this, like we opened at 400 but if you notice you can see that straddle 400 पे open हुआ
एंड यहाँ से मार्केट 500 पॉइंट का एक रैली देखने को मिला एंड 500 पॉइंट नीचे देखने को मिला. सो ऑलरेडी स्ट्रैडल जितना प्राइस कर रहा था उसका ऑलरेडी 500 पॉइंट्स अप एंड 500 पॉइंट्स डाउन का ऑलरेडी मूव फर्स्ट 1.5 आवर्स में मार्केट दे दिया एंड अ लॉट ऑफ पीपल वुड हैव बीन ट्रैप्ड हियर. एंड उसके बाद एट अगेन द मार्केट्स ब्रोक द डे स्लो समवेयर अराउंड दिस लेवल एंड उसके बाद अगेन द मार्केट्स रैलीड बैक अनदर 400 पॉइंट्स एंड एट अगेन द मार्केट्स फेल अनदर 400 पॉइंट्स. सो टोटल ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट्स के आसपास मार्केट्स ने स्विंग दिया एंड सम ऑफ दीज मूव्स were quite brutal where the option premiums were tripling every 15 to 20 minutes. यहाँ पे calls triple हो रहे थे, उसके बाद यहाँ पे puts double हो रहे थे and again puts double हो रहे थे, calls triple हो रहे थे. So it was not an easy outing for the option traders today and this kind of a day was kind of expected. मैंने भी थोड़ा बहुत expect किया था and because of that I was not able to make a decent amount of money the previous expiry because last expiry यहाँ पे जब markets निफ्टी का expiry के दिन जहाँ पे markets 24,500 के आसपास ट्रेड कर रहा था तो आइडियली उस दिन ऑप्शन राइटर्स काफ़ी अच्छा पैसे बनाना चाहिए था एंड एज एन ऑप्शन राइटर मुझे भी काफ़ी अच्छा पैसे बनाना चाहिए था बट आई मेड ओनली समवेयर अराउंड 0.4% बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग सम सॉर्ट ऑफ वोलेटिलिटी. टुडे ऑल्सो आई मेड सिमिलर अराउंड 0.4-0.5% के आसपास ही पैसा बना बट दिस इज प्रॉबली टुडे वॉज वन ऑफ द डेज वेयर मेजॉरिटी ऑफ द ऑप्शन राइटर्स वुड हैव स्ट्रगल टू मेक मनी बट बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ अ डे आई वाज पोजिशन्ड अकॉर्डिंगली. एंड अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक अच्छा खासा एक सपोर्ट था तो फर्स्ट टिक पे जैसे मार्केट यहाँ पे आया लाइक आई शॉर्टेड द पुट्स एंड आई वेटेड फॉर द मार्केट्स टू एक्चुअली गिव अ स्पाइक एंड यहाँ इस लेवल के आसपास मैंने कॉल्स थोड़ा बहुत शॉर्ट किया एंड दैट गेव मी अ डिसेंट बिट ऑफ एन इनिशियल मार्क टू मार्केट कुशन एंड उसके बाद ऑफ कोर्स द मार्क टू मार्केट केप्ट ऑन होवरिंग अप एंड डाउन एंड यहाँ पे मेरा मार्क टू मार्केट जितना यहाँ पे था इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी उतना ही मार्क टू मार्केट. तो बेसिकली लाइक ऑल आई हैड टू डू वाज प्रोटेक्ट माय मार्क टू मार्केट एंड नॉट लेट इट स्लाइड इन दिस एंटायर पॉइंट. तो पूरा लाइक 3 hours आई डिडंट गेन एनी मार्क टू मार्केट बट एट द सेम टाइम आई डिड नॉट सी एनी sliding down of my mark to market. But nonetheless today was not an easy outing and tomorrow is again Nifty's 2DT. तो अगर निफ्टी की स्ट्रैडल की बात करें तो इन स्पाइट ऑफ द मार्केट्स क्लोजिंग डाउन लाइक दिस इज द सेकंड कॉन्जिक्यूटिव रेड क्लोज एंड इन स्पाइट ऑफ दैट यू कैन नोटिस दैट 450 का जो कल क्लोज हुआ था मार्केट्स में तो आज 370 पे स्ट्रैडल क्लोज हुआ है. सो इट मीन्स दैट रेड क्लोजिंग दैट द मार्केट्स आर गेटिंग एज लॉन्ग एज वी आर अबाउट 24,000 23,900 लेवल्स द मार्केट्स विल नॉट माइंड दिस एंड द मार्केट्स विल नॉट सडनली रीप्राइस द वॉल्स एंड अभी भी मार्केट्स इसी व्यू के साथ जा रहा है कि लाइक दिस इज जस्ट अ माइनर प्रॉफिट बुकिंग और सम सॉर्ट ऑफ अ कंसोलिडेशन बिफोर द मार्केट स्टार्ट्स इट्स नेक्स्ट लेग higher. तो कल के लिए I'll definitely not get into the business of predicting where the market's going to, the straddle's going to open and straddle's going to close because at this point nobody knows and market के intra-day में अगर news आ जाता है then suddenly that will have a different impact and अगर overnight कुछ news आज आ जाता है तो then that will have a different impact and also if by any chance market starts to trade somewhere around 24,000 tomorrow then again the markets में थोड़ा बहुत anxiety ज़्यादा हो जाती है going into the weekend and again that will again spike the straddles. So tomorrow definitely one should not trade delta neutral or short wall kind of structures but rather wait for price action and start trading price action points if at all one has to trade. But most probably कल मेरे लिए no trade day ही है but if at all somebody wants to trade then we have to figure out like where are the inflection points in the markets are. तो you can notice that markets में यहाँ पे trapping करके markets ने continuously 2 red close दिया है so which means that tomorrow also there is a higher likelihood that the markets are going to open a gap down. So let's talk about that particular scenario. तो अगर markets में एक lower gap down opening का अगर scenario हो जाता है तो then ideally the market should open below this line and 24,000 पे अगर market आ जाता है तो then 24,000 is a decent level with this as some sort of a stop loss somewhere around 60 to 70 point stop loss के साथ 24,000 के in and around हम लोग एक bullish trade को initiate कर सकते हैं and अगर यहाँ पे हमारा stop loss hit हो जाता है then we should also be okay to reverse our position but वो तभी होगा if market opens at 24,050 levels and 24,000 के आसपास आएगा and but अगर market 24,100 के आसपास आके यहाँ पे 24,000 पे आएगा and यहाँ पे आप लोग initiate करेंगे long trade and यहाँ पे अगर stop loss जाएगा तो then यहाँ पे आपको reverse नहीं करना चाहिए because markets already intraday में 150-200 point already move दे चुका है तो यहाँ पे कोई sense नहीं बनता आप stop and reverse kind of a trade initiate करो and again वापस bearish trade पे जाओ. ठीक है. So these are some of the points that one needs to take care. अगर market 24,000 के अगर आसपास अगर खुलता है तो then one can initiate a 24,000 straddle with probably 10 to 15% size provided there is no initial crush in the
स्ट्रैडल्स, मतलब स्ट्रैडल अगर 380 या 380 के ऊपर अगर खुलता है तो देन यू कैन गेट समवेयर अराउंड 20 to 25 पॉइंट्स ऑफ क्रश ऑन फ्राइडे इफ मार्केट इज ट्रेडिंग समवेयर अराउंड 24,000 लेवल्स। तो 24,000 पे यहाँ पे आपको एक डिसेंट रेंज मिल जाता है, 23,920 ऑन द डाउन साइड एंड 23,150 ऑन द अपसाइड। तो इस 150 पॉइंट्स अपसाइड एंड 100 पॉइंट्स डाउन साइड में आपको कोई एडजस्टमेंट्स नहीं करना चाहिए। तो इन दिस केस 24,000 स्ट्रैडल सीम्स लाइक अ डिसेंट बेट फॉर मी। But in the lower probability event where the market again gaps up, then most probably हमको कोई ट्रेड्स नहीं लेना चाहिए, बिकॉज आप देख सकते हैं कि मल्टीपल टच पॉइंट्स हमको नजर आ रहा है, मल्टीपल इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स हमको नजर आ रहा है। मार्केट्स कहीं पे भी रिवर्स कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मार्केट यहाँ पे खुलेगा तो देन मार्केट्स इधर आज के हाई पे रिवर्स कर सकता है, या मार्केट इस यहाँ पे जो एक प्राइस एक्शन पॉइंट बना है यहाँ पे रिवर्स कर सकता है। सो इट्स वेरी हार्ड टू प्रेडिक्ट लाइक व्हाट्स द मूड ऑफ द मार्केट। बट अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन करके अगर 10 o'clock के पहले यहाँ पे एक ब्रेकडाउन देगा, देन वी कैन एक्चुअली ट्रेड द डायरेक्शन ऑफ द ब्रेकडाउन एंड 24,020 तक हमारा टारगेट जो है वो होना चाहिए। एंड अगेन 24,000 के आसपास मार्केट्स आएगा तो वहाँ पे अगेन लोअर टाइम फ्रेम पे हम लोग डब्ल्यू पैटर्न को वेट करेंगे एंड यहाँ पे अगेन हम लोग एक रिवर्स करके हम लोग रिवर्सल ट्रेड भी हम लोग इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट मी नो इन द कमेंट्स आज का एक्सपायरी आपके लिए कैसा रहा, एंड अगेन सी यू आफ्टर टुमारोज मार्केट एक्शन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.